थैंक यू, नमस्कार। हम हम हमें हेरिटेज, रामायण हेरिटेज, अपनी विचार विरासत को इसमें देख रहे हैं। और 5 लोग इस पर बोलने वाले हैं, इस सब्जेक्ट पर। सबको तो देख रहा हूँ मैं। एक देवाशीष पॉल नहीं है। देवाशीष पॉल हैं क्या? नहीं है। तो हम पहले वक्ता हैं डॉक्टर भरत राज सिंह। वो तो हमें सामने में दिख रहे हैं। जी तो सर। बोलेंगे रामेश्वरम ब्रिज पर। सर, यस आप सर। शुरू करिए। अच्छा ठीक है सर, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा पहले तो। इनफैक्ट मैं भी देखता हूँ कि पीपीटी शेयर हो जाए। आवाज नहीं आ रही है। सिंह साहब आपके म्यूट है या फिर इंटरनेट में दिक्कत आ रही म्यूट तो नहीं है, म्यूट तो नहीं है। है? डॉक्टर साहब आप हैं यहाँ पर? सब कुछ शेयर करने वाले थे। वो जी। मुझे लगता है एग्जिट कर गए। नहीं, दिख तो रहे हैं सर सामने, उनका वीडियो ऑफ है बट वो दिख रहे हैं। अच्छा हाँ, वीडियो ऑफ हो गया है। वो फ्रीज कर गया था उनका वीडियो, मुझे लगता है बैंडविड्थ की कोई प्रॉब्लम हो। बैंडविड्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी। डॉक्टर साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? अब दूसरे शुरू करें क्या? दूसरे को तब तक बुला लें क्या? दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं किसी और नाम से। या ज्वाइन कर चुके हैं? सुलोचना शर्मा जी को नहीं, रिक्वेस्ट करें क्या हम? मैं आ गया हूँ हाँ, आ सर। गए, आ गए भरतराज हाँ, जी। शेयर नहीं हो पा रही है शायद, पिछली पीपीटी बंद नहीं किया है उन्होंने शेयरिंग पर। तो मैं, हालांकि मैं चाह रहा था कि मेरी पीपीटी शेयर हो, अगर कोई दूसरा टिकअप कर ले तो क्लोज करना पड़ेगा पहले उनका शेयरिंग, तभी आएगा, क्योंकि दिख रहा है कि उनकी शेयरिंग अभी क्लोज क्लोज है करनी इस पड़ेगी। वक्त, किसी ने शेयर नहीं की हुई है इस वक्त किसी ने मैं पीपीटी। मैं फिर आप अपना प्रारंभ करता हूँ। पीपीटी नहीं शेयर हो पा रही है। भरतराज सिंह जी एक अपना म्यूट कर दिए, भरतराज आपके दो सिंह डिवाइस and हैं। जी सर। आदरणीय भरतराज सिंह जी, आपके दो डिवाइस ऑन है, एक को बंद कर दीजिए। नहीं, इसलिए रहेगा। करना पड़ा कि वो दूसरे डिवाइस पर वो काम नहीं कर रही, बंद कर दे रहे हैं। हाँ, एक बंद कर दीजिए। हाँ, क्योंकि वो पीपीटी शेयर नहीं हो पा रही तो इसलिए कोई दिक्कत कर कोई रही है। कोई बात नहीं। हाँ, वो मैंने बंद कर दे रहे हैं। बंद हो गई होगी सर हेमनाथ जी। या तो फर्स्टली आई Bhatraj Singh, as well as my colleagues, Dr. P.K. Singh and Dr. Hemant Singh, would like to express my gratitude to the founder of Ramcharit Bhavan, Shri Dr. Om Prakash Gupta ji. As well, I would also like to welcome on this auspicious occasion of international conference, 7th international conference on this Ramayana. To Shri Shiv Prakash ji, as well Shyam ji and Shavnath ji, as our chairperson, chairman Shri Ram Malik ji, as well as other esteemed personalities, Dr. Sri ji, Dr. Raj Rani ji, other Vinita ji, Dr. Vinita ji, Asha, and all other esteemed
participants and paper presenters as well as teachers. So my topic of this today's research paper is the Rameshwaram Bridge at ancient marble built by the Lord Rama's Banar Sena. My paper number is 154. So in the introduction, I just mentioned that the Rameshwaram Bridge, also known as Adam Bridge, is a 35-kilometer long chain of the shoals and Iceland. Can I just mix the Hindi and English both so that audience can very well, with the permission of chairman sir, तो मैं चाह रहा हूँ कि दोनों मिक्स कर लो. It is connected to Sri Lanka by 35 kilometers. This ancient structure has fascinating scholars and spiritual seekers for the centuries, standing as both the engineering marvels and a testament up to the Indian rich culture heritage. Describing in the Ramayana, this bridge was constructed by the Lord Rama's army of monkey as VS Banar Sena, which was known at that time, to facilitate their journey to Lanka to rescue Sita from Ravana. Remarkably, this massive structure was completed in just 5 days, showcasing the exceptional ingenuity and skill of the builders. And there was a picture, but I am not able to show it because it is not getting connected. That Dhanushkoti to the Sri Lanka, Mandar, the place was the shortest, and 3 days our Ram has visited the location where is the shortest place, and sea is also not much deep. After 3 days, when the prayer was conducted by Sri Rama, then he just put his Dhanush bow, and that today it is known as Dhanush Koti. Koti means that end of means that side of Lanka. So Rameshwaram Bridge have been constructed using the wooden piles. This is today's construction. Also, it matches bridge as described by the Ramaswamy in 2013. The theory supported the fact that bridge structure is still intact despite the being submerged in the sea of thousands of years. It is 4.5 meter to 5 meter deep. It is submerged. Water has just come up, so it is still visible. So this study aims to explore the historical and mythological significance of the Rameshwaram Bridge as well as the engineering and construction features. इसका पर्पज यही है कि इसको क्यों हम कर रहे हैं, इसको पता करना है कि आगे क्या होता है. तो इसमें लिटरेचर स्टडी वी हैव मेड द ब्रिज इन एंशिएंट टेक्स्ट. वी टुक द वाल्मीकि रामायण, and वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड में 22वां सर्ग में ये लिखा हुआ है कि समुद्र की सलाह के अनुसार नल द्वारा सागर पर 100 योजन लंबे पुल का निर्माण उसके द्वारा श्री राम के आदि सहित बानर सेना को उस पार पहुंचाने के पदक्षेप में किया गया. इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि नल जो है विश्वकर्मा के पुत्र हैं, और उस पुत्र कह लीजिए, एंड वो बड़े निपुण शिल्पकार रहे हैं, जो कि हमारे वाल्मीकि रामायण की बात मैं बता रहा हूँ. और 45वें श्लोक में है उनके. वह 56वें 57वें श्लोक में लिखा हुआ, वह शाल अशुकर्ण धव बांस कुट्टज अर्जुन ताल तिलक नीतिश बेल छिदवन खिले हुए कनेर आम अशोक आदि के वृक्षों को समुद्र को पाटने में यूज किया गया. वह श्रेष्ठ बानर वहां वृक्षों को जड़ से उखाड़ लेते थे और कई को जड़ के ऊपर से तोड़ लेते थे, और इंद्रध्वज के नाम के समान ऊंचे ऊंचे वृक्षों को उठाए लिए चले जाते थे और उसमें समुद्र में डालते रहते थे.
महाकाय महाबली बानर हाथी के समान बड़ी बड़ी शिलाओं को, पर्वतों को उखाड़कर यंत्रों द्वारा, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर द इंजीनियरिंग फीचर दैट इट इज मेंशन्ड by the Valmiki that it was carried by the यंत्र टुडे मीन्स जो आज मॉडर्न है, हो सकता है उससे बहुत अच्छे यंत्र रहे हो जिसका उपयोग माइन्यूटेस्ट रहे, माइक्रो टाइप रहे हो, जिससे एनर्जी का उपयोग करके वो उसको ले जाके वहां फेंकते। दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो उसमें बड़े बड़े पहाड़ पत्थर तोड़ देते थे, उसको उन्होंने रस्सों के बल पर लेकर के खिसकाया है। तो ये इंजीनियरिंग के लिए ये स्वाभाविक है, क्योंकि इंजीनियरिंग में ऐसी चीजें पाई जाती हैं। और ये 62वें उसमें श्लोक में है। उसके बाद 68 से 73 श्लोक में पहले दिन उन्होंने 14, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन, इस प्रकार 100 योजन का पुल बांधने में कपश्रेष्ठ नल नील के साथ, नल नील का काम था उस पर राम लिख देना, जो पत्थर आते देखते थे, और उसका भी पत्थरों का भी जांच की गई है, इससे अभी मालूम होता है। मैं रिसर्च मेथडोलॉजी में इसका जिक्र कर रहा हूँ कि प्राइमरी सोर्स हम लोगों ने एंशिएंट हिंदी स्क्रिप्चर जैसे अभी बताया इसको लिया है, और दूसरा हम लोगों ने वाल्मीकि रामायण के बाद हम लोगों ने अपना रामचरितमानस को लिया। तो रामचरितमानस में जो जिक्र हम लोगों के साथ मिला है वो दोहा 6.1 है। तो ये आपका लंका कांड में अत उतंग फिर पादप लीले ते ही उठाई, आन दे नल नीले रचे सेतु बनाई। दूसरा 6.2.4 पर लिखा हुआ है, बाधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जिस भय उजागर, बूढ़े आने बूढ़े जेई, भय उपल वोहित समतेई। ये इतना गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने उससे, लेकिन हमें वाल्मीकि रामायण में इसका काफी विस्तृत जिक्र है। तो ये हमने लोगों ने प्राइमरी सोर्स इसको लिया। सेकेंडरी सोर्स जो एकेडमिक में रिसर्चेज अभी तक हुई हैं उस पर क्या इंजीनियरिंग से स्टडी ब्रिज को बनाने में, उसको हम लोगों ने इस पे अपने अध्ययन के लिए जोड़ा है। तो इंजीनियरिंग एनालिसिस में स्टडीज ऑफ द ब्रिजेस फाउंडेशन सुपर स्ट्रक्चर एंड मटेरियल हेल्प अंडरस्टैंडिंग इट्स कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड ड्यूरेबिलिटी, ये सब चीजें के लिए कैसे किया गया। सबसे बड़ा प्रमाण हमारे लिए सैटेलाइट इमेजिनरी, जो कि नासा के सैटेलाइट पिक्चर्स प्रोवाइड हुए हैं, क्रुशियल डाटा एंड ऑन द ब्रिज स्ट्रक्चर हम लोगों ने उसमें देखा, उनके उसमें कंपोजिशन एंड रिलेशनशिप विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कंबाइंस हिस्टोरिकल मेथोडोलॉजिकल रिसर्च एंड geographical and engineering analysis to provide the comprehensive understanding of the Rameshwaram Bridge, its construction and its significance in both the cultural and scientific context. इंजीनियरिंग मार्बल के बारे में हम ये कहते हैं कि फ्लोटिंग स्टोन, अगर नल्लीन ने उसको, तो नल्लीन का एक बहुत ही साइंटिस्ट थे तगड़े बड़े, और वो पत्थरों को देख कर कि वोल्काइन स्टोन कौन है, ऐसा है कि ऊपर से बिल्कुल कवर्ड है, अंदर में हल्का है, तो उसको टच करते राम लिख करके आगे जैसा जिक्र है, तो वो पॉसिबिलिटी भी इसमें दिख रही है। एडवांस टेक्निक में एंशिएंट टेक्स्ट डिस्क्राइब द यूज ऑफ एडवांस टेक्निक बिल्डिंग द ब्रिज, सम मंकीज ट्रांसपोर्टेड द लार्ज माउंटेन टू द कोस्ट लाइन यूजिंग मशीन्स, वाल्मीकि रामायण, while others tied rope building the bridges। ये जो जिक्र है ये आज के भी उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी में भी इसका हम मान सकते हैं कि मैनुअल काम हुआ। वुडन पाइल्स थे, आज जो भी है समुद्र में उसमें या तो डीप बेल करके करते हैं या पाइल ठोक कर करते हैं, ये सारी लकड़ी और सारी चीजें उसमें डाली गई, तो वुडन पाइल्स का। चौथा साइंटिफिक एविडेंस आगे का है, नासा कंफर्मेशन। NASA satellites in 1993, NASA released a satellite image, the 48 kilometer wide land mass between the Dhankoti in India and Pabban in in Sri Lanka. The first image was captured by NASA Gemini 2nd spacecraft in 1966,
as back as you can see with the ISS I-1A satellite. Then scientific inquiry अभी तक जो हुई है, in 2017, recent past 8 years back, America TV show says suggested that the Hindu myth might have a basis in reality. उन्होंने कहा है कि सही है, ये मिथ नहीं है, ये केवल ऐसा मानना गलत है, क्योंकि 50 किलोमीटर लाइन जो रॉक्स की बिलीव की जा रही है वो 7000 साल ओल्ड उसमें पाई जा रही है, और जो सैंड उसके बीच में सैंड स्टोन डाले गए छोटे छोटे रेवल्स, वो 4000 ओल्ड हैं, जिससे ये पॉसिबिलिटी कि ये ह्यूमन कंस्ट्रक्शन नहीं तो ये एकदम से अगर बोल्डर ही पड़ा होता या रेवल्स, दोनों के डेटिंग में फर्क न होता. हिस्टोरिकल एक्सेस research indicates that until 15th century it was possible to walk. ये 15th century तक रामेश्वरम मंदिर पर मन्नार आइसलैंड तक लोग जाते थे, पैदल जाते थे. ये साइक्लोन इन 1480 डीपेंड द सी. 1480 में एक साइक्लोन आया जिससे पानी ऊपर हो गया, ये ब्रिज नीचे सबमर्ज हो गया तब से. तो ये इसका स्टडी में आया है. और इसके साथ ही ये अब रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, इसमें क्या फाइंडिंग्स हम लोगों ने की फाइंडिंग्स पाई है वो हम लोगों ने देखा कि अबाउट राम सेतु. द एंशिएंट इंजीनियरिंग मार्वल, द रामेश्वरम ब्रिज डेमोन्स्ट्रेट द एक्सेप्शनल एंशिएंट इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन स्किल. इट्स स्ट्रक्चर हैज withstood the test of time and harsh marine environment for the approximately 5 years. 5000 साल से ये वैसे ही अभी भी दिख रहा है. With its formation still clearly visible in the satellite imagery. Natural material. The bridge construction utilized the natural material reality available in the area, such as rock and sand. The ingenuity used these material to create the floating structure across the sea demonstrates the advancement नॉलेज ऑफ द मटेरियल प्रॉपर्टी. उस समय भी मटेरियल की प्रॉपर्टी का नॉलेज बहुत था लोगों में. तो कल्चरल सिग्निफिकेंस बियॉन्ड इट्स इंजीनियरिंग एस्पेक्ट द ब्रिज होल्ड्स इमेंस कल्चर रिलीजियस सिग्निफिकेंस एज ये फिजिकल मैनिफेस्टेशन of events described in ancient Hindu texts connecting the mythology with the geographical reality. तो इससे जोग्राफिकल रियलिटी में क्या सिग्निफिकेंस है धनुषकोटी का. स्ट्रेटेजिकल लोकेशन आफ्टर 3 days सर्च ऑफ लॉर्ड रामा, एज आई हैव ऑलरेडी सेड बिफोर, identified the spot near the Rameshwaram from where the bridge to Lanka could be constructed. Proximity to Sri Lanka. Dhanushkoti is located just 18 miles, means that it's around 35 kilometers west of the Talai Mannar region in the Sri Lanka, making the closest point between the two lands. ये बड़ी भारी इंजीनियरिंग है कि कौन सा सबसे नजदीक है, और उसको उन्होंने सिग्निफाई किया. और ये शैलो वाटर्स, और ये भी देखा गया है धनुषकोटी इज द ओनली लैंड बाउंड्री वेयर द इंडिया एंड श्रीलंका वेयर द सी इज डेप्थ इज शैलो, ज्यादा गहरा नहीं है और कंपेयर टू अदर, and land occasionally emerges from the water. So from the name Dhanushkoti comes Dhanush, bow, and Koti means end, referring the place where the Lord Rama struck his bow, and the shape of the bridge built Nal Neel resembles as bow. वो धनुषकोटि के समान ही धनुष के तरीके से दिख रहा है, giving the region its a distinctive name and significance of the Hindu mythology. अब conclusion में आते हैं. What is the conclusion of this? Conclusion and future research directions. Further archaeology study हमें करना है. Underwater excavation could reveal more about the construction and technique of the material used. इसके बारे में जानकारी ये कैसे हो सकती है. Dating analysis, advanced carbon dating. अभी जो किया है ये केवल यूएस के विजनरी उससे करके बताया गया है, लेकिन इसमें अगर हमें कार्बन डेटिंग करें, जियोलॉजिकल एनालिसिस करें, दैट विल गिव मोर प्रिसाइज एज एस्टिमेटेड इन द स्ट्रक्चर. कंजर्वेशन एफर्ट, डेवलपिंग द स्ट्रेटेजी टू द प्रिजर्वेशन दिस एंशिएंट हेरिटेज
साइट फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड थ्रेट्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी। इसको हमें प्रिजर्व करना है, हमें इसको देखना है कि हमारा धरोहर जो है ये खत्म न हो, इस पर काम करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। कल्चरल डॉक्यूमेंटेशन, comprehensive documentation of the reference to the Ram Setu across the various culture and historical texts को हमें संग्रहित करके उससे बहुत सी चीजें, हमारी एक्चुअल जो फैक्ट्स हैं उसको दिखाना चाहिए। रामायण ऐसा नहीं, रामायण शोध का विषय है, रामायण अद्भुत है, राम जी का अस्तित्व रहा है। ये जो भी कहते हैं मिथ है, ये सब पूरे दुनिया में अब जब नासा जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी बता रही है तो ये इसमें दो राय नहीं है। तो thus the Rameshwaram bridge stands remarkable testament to the ancient Indian engineering prowess and cultural heritage. Its existence bridges the gap between the mythology and reality. ये जो आज खड़ा हुआ है, ये mythology और reality के बीच का गैप खत्म कर रहा है। चैलेंजिंग और अंडरस्टैंडिंग टू एंशिएंट कैपेबिलिटी, उस समय क्या हमारी इंजीनियरिंग थी, साइंस थी, उसके बारे में ये झलक दिखा रहा है कि आज से कई गुना ज्यादा उस समय इंजीनियरिंग थी। एज रिसर्च कंटिन्यूज, डॉक्टर साहब फिनिश कर दीजिए अब। स्ट्रक्चर में रिवील इवन मोर सीक्रेट अबाउट आवर पास्ट, कनेक्टिंग अस टू द इंजीनियरिटी ऑफ आवर एंसेस्टर्स। हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने कितनी बड़ी चीजें की हैं, तो इसका ये झलक हमने इसमें दिखाने की कोशिश की। बाकी थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक टू द ऑडियंस, थैंक टू आवर चेयरमैन, थैंक्स टू एवरीवन हु हैज लिसन्ड, थैंक यू थैंक यू वेरी मच। I am sorry, I could not able to just show lot of pictures were there, lot of there that was to be just missed. ठीक है ठीक है डॉक्टर। अभी मैं अब सुलोचना शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा। आप थैंक यू सर। हाँ जी बिल्कुल। नमस्कार सर। सुलोचना शर्मा जी, हाँ जी, हाँ आप प्रारंभ कर रहे हैं आप अपना। हाँ जी बिल्कुल। सम्माननीय ओम प्रकाश जी, शिव प्रकाश जी, आदरणीय राम मलिक जी सर और समस्त विद्वजन, मैं सुलोचना शर्मा बूंदी राजस्थान से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। मेरे आज का विषय है राम सेतु निर्माण पौराणिक एवं आधुनिक परिप्रेक्ष्य एक तुलनात्मक अध्ययन, जिसमें काफी कुछ तो भरत सर बोलकर गए हैं अभी मेरा ही वाला वही तैयार किया था, लेकिन मैं बताती हूँ। राम सेतु भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच स्थित एक प्राचीन पुल है, जिसका उल्लेख रामायण, महाभारत, पुराणों सहित कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। इसे भगवान श्री राम ने वानर सेना की सहायता से लंका जाने के लिए बनवाया था। नल नील द्वारा बनाए गए इस सेतु में तैरने वाले पत्थरों का उपयोग हुआ, जिससे समुद्री पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंची। वहीं आधुनिक समुद्री पुल उन्नत इंजीनियरिंग तकनीक से बनाए जाते हैं, जो व्यापार, पर्यटन और परिवहन को बढ़ावा देते हैं, लेकिन इससे समुद्री जीव जंतुओं और पारिस्थितिक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राम सेतु और आधुनिक पुलों की तुलना से स्पष्ट होता है कि प्राचीन निर्माण अधिक पर्यावरण संवेदनशील थे, जिससे भविष्य में टिकाऊ निर्माण की प्रेरणा ली जा सकती है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित श्री रामायण में राम सेतु के निर्माण को अत्यंत विस्तृत, जीवंत और यथार्थ रूप में वर्णित किया गया है। इसमें न केवल वानर सेना की शक्ति का वर्णन है, बल्कि उस समय के प्राकृतिक संसाधनों, यांत्रिक साधनों और संगठित कार्यशैली की भी झलक दिखाई देती है। श्री वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के सर्ग 22-23 में इसका विस्तृत उल्लेख मिलता है। श्लोक का उच्चारण मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा मानना है शुद्ध होना चाहिए और संस्कृत मेरा विषय नहीं है, इसलिए मैं सीधे भावार्थ पर ही आती हूँ। युद्ध कांड 22 सर्ग 54 और 55 श्लोक है, उसका भावार्थ मैं बता रही हूँ कि वानर सेना के सेनापति, जो आकार में पर्वतों के समान विशाल थे, उन्होंने समुद्र के तट पर स्थित बड़े बड़े वृक्षों, चट्टानों को उखाड़ना शुरू कर दिया। वानरों ने जंगलों के साल, अश्वकर्ण, धव, बांस, कुटज, अर्जुन, तिलक, तिनिसा, बिल्ब, सप्तपर्ण, कर्णिकार, आम और अशोक जैसे विविध प्रकार के वृक्षों को समुद्र में डालकर उन पर सेतु निर्माण की नींव रखी। युद्ध कांड का ही 22वां सर्ग है, 56वां श्लोक है। इन वनों से कुछ वृक्ष जड़ों सहित लाए गए, जबकि कुछ केवल तनों के रूप में। इन वृक्षों को ऐसे उठाया गया जैसे इंद्र के
ध्वज स्तंभ हो। इससे उनकी ऊंचाई, मजबूती और प्रभाव का आभास होता है। युद्ध कांड का 22 सर्ग 57 श्लोक कहता है, इसके अतिरिक्त वानरों ने पलमायरा के पेड़, अनार की झाड़ियां, नारियल, अभितक, करीरा, बकुल और नीम जैसे फलदायक और कठोर लकड़ी वाले पेड़ भी सेतु निर्माण हेतु लाए। यह स्पष्ट करता है कि नल एवं वानर सेना को लकड़ी के प्रकार और उसकी उपयुक्तता का वास्तविक ज्ञान था। 22वां सर्ग 58वां श्लोक कहता है, केवल वृक्ष ही नहीं अपितु हाथी के आकार की चट्टानें और छोटे पर्वत भी वानरों ने यंत्रों की सहायता से, मतलब उस समय यंत्रों का प्रयोग भी किया जाता था, यंत्रों की सहायता से समुद्र तक पहुंचाए। यह उल्लेख दर्शाता है कि उस समय मूलभूत यांत्रिक साधनों का प्रयोग भी किया जा रहा था, जो उस युग की तकनीकी प्रगति को संकेत करता है। सेतु निर्माण पूरी तरह संगठित योजना के तहत हुआ। कुछ वानर पुल को नाप रहे थे, तो कुछ जड़ों से उसे बांध रहे थे, कुछ निर्माण सामग्री एकत्र कर रहे थे, तो कुछ समुद्र में व्यवस्था से इन्हें रख रहे थे। राम की आज्ञा से यह कार्य सैकड़ों वानरों द्वारा तत्परता और निष्ठा से किया गया। बादलों और पर्वतों जैसे दिखने वाले नरकट, लट्ठों और पत्थरों को बांधकर पुल के विभिन्न खंडों को जोड़ा गया। यह वर्णन केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग और संगठनात्मक क्षमता को भी दर्शाता है। राम सेतु का निर्माण वानर सेना की सामूहिक शक्ति, सुनियोजित प्रयास और प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग का अद्भुत उदाहरण है। यह एक ऐसा सेतु था जिसमें वृक्ष, पत्थर, यांत्रिक साधन, मापन और कार्य विभाजन सभी आधुनिक निर्माण तत्वों की झलक दिखलाते हैं। इसके अलावा रामचरितमानस में वर्णन है, नल और नील ने वानर और वृक्षों की सहायता से समुद्र पर एक मजबूत सेतु का निर्माण किया। अति उत्तंगगिरि पादप लीलहि लेहि उठाई आनि देहि नल नीलहि रचयिते सेतु बनाई। अर्थात वानर बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह उखाड़कर नल नील को देते थे, जो उनसे सुंदर और सुदृढ़ सेतु बनाते थे। यह स्पष्ट करता है कि राम सेतु का निर्माण पूर्णतः प्राकृतिक सामग्री से हुआ था, जिससे पर्यावरण को कोई हानि नहीं हुई। आधुनिक विज्ञान और पुरातत्वविद भी मानते हैं कि यह सेतु करीब 50 किलोमीटर लंबा था, जिसमें तैरने वाले पत्थरों का प्रयोग हुआ था। ये पत्थर चूना पत्थर की श्रेणी में आते थे, जो ज्वालामुखी के लावा से बने होते थे। ये अंदर से खोखले और बारीक छिद्रयुक्त होते थे, जिससे उनका वजन हल्का रहता था और वे पानी में तैर सकते थे। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नल न केवल श्रेष्ठ इंजीनियर थे, बल्कि एक उच्च कोटि के पेट्रोलॉजिस्ट भी थे, जिन्हें पत्थरों का गहरा ज्ञान था। उन्होंने ऐसे ही पत्थरों का चुनाव किया जो पानी पर तैर सकते थे। नासा की उपग्रह छवियां और आज भी रामेश्वर में पाए जाने वाले तैरते पत्थर इसकी ऐतिहासिक अस्तित्व की पुष्टि करते हैं, जो धर्म ग्रंथों में वर्णनों में से मेल खाता है। आधुनिक विज्ञान पुल निर्माण सामग्री आज के तकनीकी युग में भी समुद्र पर पुल बनाना एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें आधुनिक सामग्रियां और तकनीकें प्रयोग की जाती है। मुख्य निर्माण सामग्री प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, स्टील गर्डर व केबल, फाइबर पॉलीमर, FRP, एंटी कैरोजन कोटिंग, विशेष मिश्रित कंक्रीट आदि प्रयोग किए जाते हैं, जो श्रम साध्य के साथ साथ समय साध्य भी काफी है। निर्माण तकनीकें जिसमें पाइल, जिससे लंबे लंबे बड़े बड़े खंबे अंदर तक धसाए जाते हैं, कैसल फाउंडेशन, केबल स्टे, सस्पेंशन ब्रिज, प्रीकास्ट, सिगमेंट, फ्लोटिंग क्रेन आदि सभी का उपयोग आधुनिक पुल निर्माण में किया जाता है। इन सभी तरीकों से पुल मजबूत, टिकाऊ और सुरक्षित बनते हैं। फिर भी इनकी आयु सीमित है। वहां हम देखते हैं कि हमारे राम सेतु को आज भी अंतरिक्ष से देखा जा सकता है, इतने वर्षों पश्चात भी। आधुनिक पुलों के निर्माण का पर्यावरणीय प्रभाव। पुल निर्माण से समुद्री जीवों के आवास नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि खंबे अंदर तक धंसाए जाते हैं और उनके जो आवास है वो नष्ट हो जाते हैं। प्रवाल भित्तियां व समुद्री घास नष्ट हो जाती है। जल में गाद और रसायन बढ़ने से जीवों को सांस लेने में तकलीफ होती है। मशीनों का शोर और रोशनी जीवों के संचार और प्रवास में बाधा डालते हैं। जल धाराओं का परिवर्तन तटीय कटाव व जैविक असंतुलन लाता है। पुल निर्माण रख रखाव के दौरान तेल रसायन से जल दूषित होता है, उससे कई जानवर, समुद्री जीव जंतुओं की मृत्यु तक हो जाती है। आधुनिक पुल निर्माण तकनीकी रूप से उन्नत है, वहीं वे पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। दूसरी ओर राम सेतु निर्माण पर्यावरण अनुकूल संरचना है।
वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के अनुसार जब भगवान श्री राम ने लंका जाने के लिए समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना की, जो पुल निर्माण तब समुद्रदेव ने प्रकट होकर याचना की और सुझाव दिया कि वानर नल नील जो पुल निर्माण में दक्ष हैं इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने प्रार्थना की कि इस सेतु से समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं को कोई हानि ना हो। वाल्मीकि रामायण युद्धकांड सर्ग 22-23 में उल्लेख है कि वानरों ने समुद्र की सतह पर तैरते हुए पत्थरों का पुल निर्माण किया। श्लोक 45-46 में वर्णित है कि वानर समुद्र की सतह पर पत्थर रखकर तेजी से पुल का निर्माण कर रहे थे। यहाँ बार बार सतह का जिक्र आता है, जिससे हमको ये ज्ञात होता है कि जीव जंतुओं को किसी तरह की हानि नहीं हुई थी। रामचरितमानस में भी वर्णन है कि जब वानर श्री राम का नाम लिखकर पत्थर समुद्र में डालते थे तो वे डूबने के बजाय तैरने लगते थे। अर्थात श्री राम के नाम के प्रभाव से पत्थर समुद्र में तैरने लगे और पुल बनने लगा। इससे स्पष्ट होता है कि यह पुल समुद्र की सतह पर तैरते हुए बना था। पर्यावरणीय दृष्टि से राम सेतु एक अत्यंत अनूठा और संतुलित निर्माण था। यह पुल समुद्र के भीतर खंभों या पिलर्स के सहारे नहीं टिका था, जिससे समुद्री धाराओं का प्रवाह अवरुद्ध नहीं हुआ। समुद्र की सतह पर तैरती संरचना होने के कारण जलीय जीव जंतुओं का प्राकृतिक आवास सुरक्षित रहा। समुद्र के जल परिसंचरण और पारिस्थितिक तंत्र पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। यह जैव विविधता को नुकसान पहुंचाए बिना बनाया जाने वाला एक मजबूत और टिकाऊ संरचना का आदर्श उदाहरण था। इस प्रकार दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर निष्कर्ष निकलता है कि राम सेतु प्राचीन भारतीय निर्माण ज्ञान और पर्यावरण संवेदनशीलता का एक उत्कृष्ट प्रतीक है। राम सेतु जिसमें बिना किसी कृत्रिम यंत्रों और प्रदूषण के प्रकृति के साथ सामंजस्य रखते हुए एक महान कार्य को संपन्न किया गया, जबकि आधुनिक पुल निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियां एवं तकनीक पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यह सीमित अवधि के लिए बनाए जाते हैं। इसके विपरीत राम सेतु प्राकृतिक संसाधनों से बना एक जैविक और पर्यावरण संवेदनशील सेतु था, जो सहस्त्र वर्षों बाद आज भी अस्तित्व में है। 100 योजन राम सेतु का निर्माण 5 दिन में हो गया था, जबकि आधुनिक पुल निर्माण में विकसित तकनीक के बावजूद बहुत ज्यादा समय लगता है। राम सेतु एक ऐसी ऐतिहासिक स्थिति की अनुकूल संरचना है जिसका अध्ययन आधुनिक इंजीनियरिंग और पर्यावरण संरक्षण में नई संभावनाओं को जन्म दे सकता है। आधुनिक विज्ञान को इससे प्रेरणा लेकर अधिक पर्यावरण अनुकूल निर्माण तकनीक की ओर बढ़ना चाहिए। राम सेतु आधुनिक युग के लिए एक प्रेरणास्पद उदाहरण प्रस्तुत करता है। धन्यवाद। मुझे इतने बड़े बड़े रामायण के मनीषियों के मध्य ये अवसर थैंक यू सुलोचना जी, आपने अच्छा वर्णन किया। थैंक यू। अब मैं आई विल नाउ कॉल मिस्टर सी रमन चंद्रमौली. He is supposed to be here. Mr. Chandramouli. Oh, he is not. He is not present. Yeah, we are present here. Hello. Just Oh, a minute. okay, you are here. There is some issue with my video, so we are just joining by our audio. So Oh, that's okay, good. You have 10 minutes and you can finish yes, your... we are also sharing our PPT right now. So Okay. ஸ்ரீராமோ விஜயதே. உலகம் யாவையும் தாமுல ஆக்கலும் நிலை பெறுத்தலும் நீக்கலும் நீங்களும் அழகிலா விளையாட்டுடையார் தலைவர் அனைவருக்கே சரண் நாங்களே. My name is Sriranjani. My father's name is Sriraman Chandramouli. And our friend uncle's name is Vijay Krishnan. We three are presenting this paper. We had to choose the topic of various heritage and culture of Ramayana in Tamil Nadu. This poem which I recited was by Kavi Chakravarti Kamban, and he recited this poem as the first in his first sloka in his Ramayana. And in any Ramayana in Tamil, traditionally starts with this poem. Now I am giving this to my father, Sriraman Chandramouli. thank you. So
Sri Rama Vijayate. So we had chosen this topic as heritage and culture of Ramayana in Tamil Nadu to actually highlight various activities across Tamil Nadu that are there to celebrate the Ramayana wonderfully. So as Sri Ranjani pointed out, one important thing that happens is there is a Kamba Ramayana part that happens often, similar to the Ramcharitmanas part that keeps on happening across the north. And any Kamba Ramayana part starts with this particular hymn, which praises the Lord. Okay. So, but right now we are going to walk through various places across Tamil Nadu and various events across Tamil Nadu that celebrate Lord Rama and in a wondrous way, which are specific or special to the southern part of the country. Okay. So moving on, first we are going to touch base Rama's Ayana, that is the path that Rama walked. So we are going to highlight some important sthalas in Tamil Nadu which are related to the Ramayana. First and foremost, as my previous two participants gracefully presented, it is the Ram Setu or Nala Setu as Rama himself called it. In Yuddha Kanda of Valmiki Ramayana, there is one wonderful shloka wherein Rama points out to this Nala Setu from the aerial car across to Sita Mata and shows that this is the place where Nala built a wonderful bridge. Please see this bridge. And he also mentions that this is going to be a wonderful place of worship and prayers going forward. So this is the only place that I can see in the entire Valmiki Ramayana where Rama himself has pointed out that this is going to be a Punya Kshetra. And that is why we wanted to highlight this. In fact, this mention is not even there for Ayodhya, but it is there for Ram Setu. And Rameshwaram is a wonderful place which has various places related to Rama. The place where Rama worshipped Shiva, there is a wonderful temple, and also a place where Vibhishana was coronated for the first time, even before they won over Lanka. All these are there. And the best part why I still want to highlight it is, as my previous panelists had presented, you can still see this wonder. It's a natural wonder where you can see rocks floating by. And we also wanted to show a video of a floating rock that someone had seen. And that's what we wanted to do with this. Even now, if you go to the southern end tip of Rameshwaram near Dhanushkoti, you can see this wonder happening. Okay. So moving on. The next place, I'm just moving north upwards from Sri Lanka and Ram Setu Rameshwaram across to other places in Tamil Nadu. So there is a place called Vrishabhamalai, right now called as Alagar Kovil in Madurai. There is a wonderful poem called Thiruvilayadar Puranam in Tamil, wherein there is a reference that Rama and Lakshmana stayed there while searching for Sita Mata, and Agastya Rishi in fact visits them and tells that pray to Lord Sundareshwara of Madurai, which is this Vrishabhamalai itself is in Madurai, and he asks them to pray to Sundareshwara for safe return of Sita and a promise that they are going to come back and visit this place along with Sita. So it says Thiruvilayadar Puranam states that this place was worshipped by Rama, and in fact Rama and Sita later comes back to Madurai and worships the Lord Sundareshwara, Shiva and Parvati, Meenakshi there. Okay. So in that way, this is very special. Again, there might be questions. Is it there in Ramayana also? Because Thiruvilayadar Puranam states this. Yes, in Valmiki Ramayana, in Kishkinda Kanta, there is a chapter called Dakshina Preksha, and there he references this particular mountain, and he says that you will have to go through this place and search for Ma Sita. And he also mentions that Agastya often has a ashram here, and he stays here. Okay, moving on, just moving still more northwards to the central part of Tamil Nadu, a very wonderful place called Srirangam. It is the Kuladevata of Lord Rama himself, which is there. Vibhishana, Lord Rama wanted to give something to Vibhishana, and he told him that I'll give you myself. And in Ramayana, it clearly states that Rama gave him his Kuladevata, equivalent to himself. And in Padma Purana of Vyasa, it is mentioned that it is a Sri Ranganatha in Sri Rangam, which is this wonderful place. So these are various places where Rama visited or are associated with Rama.
Moving on, there are two more places which I did not want to miss out of this wonderful list. Though there are numerous ones, the two more places which I wanted to highlight. One is Tirunirmalai, which is very close to Chennai, and this place has a temple for someone called as Neervanna Perumal. And the speciality of this place is this is the Kuladevata. Right now, we saw the Kuladevata of Lord Rama, and a lot of people in the Ikshvaku Vamsa and Kshatriyas even today. Even across Rajasthan, there are a lot of Kshatriyas who come down to Srirangam even today to pray to Lord Ranganatha as their Kuladevata. Same way, Tirunirmalai is considered to be the Kuladevata of Valmiki himself who wrote the Ramayana. The next one, there is a wonderful concept in Tamil Nadu called Panchakshetras. Every lord has 5 related temples. So one of those similar to that is the 5 related temples of Lord Rama called Pancha Rama Kshetras. You can see Pancha Krishna Kshetras, you can see Pancha Natarachas and so on. Same way, this is Pancha Rama Kshetra. And the most important among the Pancha Rama Kshetra is Mudikontan, wherein it is considered that Lord Rama showed his coronation pose to Bharadwaja, sage Bharadwaja. And that is this wonderful temple's image out there. Moving on. The next wonderful culture. I know that because I have a very limited time, I just wanted to cover very important places across. Now I want to showcase some of the wonderful cultural aspects that celebrate Lord Rama across the state and even in some of the other states in the southern neighborhood. Okay, the first one is Sita Kalyanam. Sita Rama Vivaham is a very important thing for most of the people across Tamil Nadu, wherein in various ways they celebrate the celestial wedding of Rama and Sita. Okay, and the first one is called the Bhajan Sandhya. So there are Bhajan Sandhyas that are held after Sri Ram Navami until November or December across Tamil Nadu, wherein celestial wedding of Lord Rama and Sita are performed through various bhajans. There were greats like Mardanallur Sadguru Swami, and who had actually set across this practice of performing a wedding, Tirumanam, Tirukalyanam, they mention it in Tamil, wherein similar to a wedding that happens across to human beings, in the same way they perform the wedding of Lord Rama and Sita. They have a photo or something, but through singing songs, etc. Same thing happens across in another place also. There is a wonderful Tamil orator called Ilangai Jayaraj. He is actually called as Kambavaridi, and he mentions that in Yadpanam, which is across the sea in Sri Lanka, every time there was a Tamil Ramayana Upanyasa that was conducted, a presentation was conducted. During the day when Sita Kalyanam was presented, you could actually see that various people would come in with what they call as Parupu Tengai, various fruits and decorations to present and celebrate the wedding wonderfully. Same way, you can even see it today happening in Tamil Nadu, wherein whenever a Ramayana is chanted during or said during the Sita Kalyanam or Pattabhisheka, they do this. The next one is in the temples. The one you see is the Sita Rama of Tirupati, Tirumala Tirupati Devasthan, wherein a similar wedding ceremony is performed wonderfully. You have the Murti is there, and to the Murti you can literally find that they actually tie the Mangala Sutra and they exchange the garlands, etc. So this is a very wonderful ceremony, and during these ceremonies, people go in lots and pray to the Lord so that they can be blessed with a wedding or some good things in their family. So this is one more thing that I wanted to highlight. And the next thing, I think this is exclusive only to Tamil Nadu, wherein a organization called Kamban Kazhagam exists, where they want to celebrate Kamban, who wrote the Tamil Ramavatara for the first time. And the way they celebrate it is wonderful. You can find Kamban Kazhagam or Kamban Vidas or celebrations happening across the places where Tamil people exist. In fact, the photo that I put in is of a Kamban Vida that happened in Australia, wherein the main thing that happens is debate. And even today, you can see that people will be debating whether what Rama did with Vali was right, or who's the worst verse. Is it Kaikeyi or Shurpanakha? That way, various topics are constantly discussed even till this day. And you can see various experts, not from the field of Ramayana, but
various other people who come in and present. You can see a lot of doctors, lawyers, and judges, and you can see a real judge being the judge during these discussions. And it is actually called as a judgment day on these topics. Okay, and the event that is showcased in this photograph is called as a Villupattu. They use a literal bow. I've just tried to highlight the bow that they had there, using which they use it as a musical instrument to sing. So moving on to another wonderful tradition, whole month of celebration is done on Ramayana in Kerala, called as Ramayana Masam. The whole month is called as Ramayana Masam. I know that some other participant also spoke about this. For 30 days, they recite the Tunja Tevitachan's Ramayana. But in a similar way, Valmiki Ramayana is actually read and reread in multiple ways across the state. You can say that they do it for 9 days. They do it for 21 days and or 27 days or 64 days, depending on what their need is or what their prayers are. And irrespective of that, during Ram Navami for 9 days, various people present this. And also Kamban's Ramayana is read in the same way. It is done in temples or in houses, wherever they want. Okay. Finally, another nice tradition of Ramayana is stringing together the various songs of great people like Tyagaraja Swami, who was a great Carnatic music composer, whose songs are composed and rendered in. So, you know, the Carnatic music culture in Chennai and Tamil Nadu is very, very famous. So in that, one very famous thing is called the Tyagaraja Ramayana. Saint Tyagaraja lived in the 18th or 19th century. Until 1860s, he was there. And it is considered that he saw Lord Rama during his last days. And one thing that he did was, everything he saw was Lord Rama for him. And when he sang various songs, everything was on Lord Rama. And during those singing, what he actually did was, what people now do is they club the songs that Tyagaraja sang and club it together to form the entire Ramayana. So that is what is happening during and that is called as Tyagaraja Ramayana, to be precise. In a similar way, there are a lot of Divya Prabandhams or songs that have been sung by someone called as Alvars. There are 12 Wind chosen up now. Alvars. Chandramouli ji, wind up quickly. Okay, yeah. The last one, same way as I said, there is a Pashurapati Ramayana or Ramanataka Kirtana. All these are also quite famous, wherein a lot of Ramayana dramas or puppet shows called Bommalatams are performed across Tamil Nadu. And again, there is a saying by Kamban himself where he says that I am from the Valmiki Ramayana, I am like a cat who's just able to drink milk from an ocean of milk. And I think we are doing the same thing, wherein we are trying to just drink some milk or thinking that we are going to try to drink that milk, and we try to present what are all the traditions across Tamil Nadu. And as I said, the tradition in Tamil Nadu that we start with Ulagam Yavayum, same way we end any Ramayana presentation with this particular song in Tamil. Ariyanai Anumantanga Angadan Udaivaliyanda Baradan Venkudai Kavikka Iruvarum Kavaripatra Vireshiri Kamalathalsher Venayur Sadayandangal Marabulor Kodukkavangi Vasittane Punaindan Mouli. This is the Pattabhisheka song of Lord Rama, which is always sung to end anything related to Ramayana in Tamil Nadu. And with that, we end our presentation. Thank you. Jai Shri Ram. Thank you, Jai Shri Ram. Thank you, Chandramouli ji. A very good presentation. Now I will call Asha Srivastav ji. Asha ji, आप अपना प्रारंभ करें. रामलीला दिखाइए आप अपना. सर्वप्रथम श्री राम चरित भवन के पावन पवित्र पटल को मेरा प्रणाम. शिव भाई साहब को, राम भाई साहब को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए हम कोशिश करते हैं कुछ कहने की. तो ये है विषय देश विदेश में रामलीला. काव्येषु नाटकम रम्यम. इस पंक्ति से काव्य में नाट्यशीलता के महत्व का ज्ञान होता है. काव्य में नाटक एक ऐसी विधा है जिससे मनुष्य सबसे अधिक समरस होता है. काव्यों में नाट्य विधा के रूप में प्रयोग होने का इतिहास इंद्र की सभा से प्रारंभ हुआ, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है. कालांतर में महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम इस विधा में एक मील का पत्थर साबित हुआ. इसी विधा का लोक संस्करण है उत्तर भारत में काशी
में लगभग 450 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास द्वारा आरंभ की गई रामलीला। रामलीला यानी कि राम की लीला, या यूं कहिए कि राम की लीलाओं की लीला, क्योंकि राम ने जो किया था वो स्वयं लीला थी, और उनकी लीलाओं की लीला जो है राम लीला के नाम से जानी जाती है। यहाँ ये बहुत ज्ञातव्य है कि उत्तर भारत में विशेष रूप से रामलीला को रामलीला खेलना कहते हैं। रामलीला का आरंभ वाराणसी में 16वीं शताब्दी में हुआ, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। इतिहासकारों की माने तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी ही थे जिन्होंने रामलीला की शुरुआत की। पहले रामकथा मंदिरों में कुछ कलाकारों द्वारा अभिनीत हुई। तो इस प्रकार अब तक रामचरितमानस में लिखी राम कथा, एम आई ऑडिबल? सर जी प्लीज, चंद्रमौली जी आप कृपया, चलिए ठीक है। तो जो अब तक सुनी, इस प्रकार रामचरितमानस में लिखी हुई राम कथा जो अब तक सुनी या गाई जाती थी, अब दिखाई देने लगी। ये बाद में ये खुले स्थानों में और कभी कभी थिएटर में भी प्रदर्शित होने लगी। कालांतर में ये भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों जैसे दिल्ली, राजस्थान, गुजरात आदि में भी खेली जाने लगी। तो मानस के मूल दोहों चौपाइयों के साथ हर स्थान की अपनी संगीत, नृत्य और अभिनय शैली का भी प्रभाव दिखाई देता है। रामनगर वाराणसी में खेली जाने वाली पारंपरिक रामलीला को 2008 में यूनेस्को के द्वारा मानवता की सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। अयोध्या में रामलीला का मंचन कई स्थानों में और कई रंगों में देखने को मिलता है। इसमें अयोध्या शोध संस्थान की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजधानी दिल्ली के रामलीला ग्राउंड की रामलीला में भरत मिलाप का प्रसंग बहुत लोकप्रिय है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। उपरोक्त सभी स्थानों में खेली जाने वाली रामलीला में अधिकांश तुलसीकृत रामचरितमानस की चौपाइयों का प्रयोग और कुछ खड़ी बोली के संवादों के साथ होता है। इसमें प्रयोग किए जाने वाला संगीत अधिकतर नौटंकी शैली में किया जाता है। इनका प्रदर्शन कुमाऊं में अल्मोड़ा की रामलीला सबसे पहले सन 1860 में आरंभ हुई, ऐसी मान्यता है। पर्वतीय क्षेत्रों की रामलीला अपनी एक अलग विलक्षणता लिए हुए होती है, जिसमें उनके स्थानीय वेशभूषा, उनके स्थानीय डायलॉग्स उस भाषा में होता है उनके, और ठेठ पहाड़ी नृत्य शैलियों में उनका समावेश किया जाता है। इस प्रकार भारत के विभिन्न स्थानों में वहां की स्थानीय शैलियों में खेली जाने वाली रामलीला का प्रचलन है। वैसे दक्षिण भारत में भी रामलीला खेली जाती है, जिसका नाम कुछ अलग हो सकता है, किंतु होती वो रामलीला ही है। अब हम आते हैं विदेशों में रामलीला पर। तो जैसे जैसे भारतीयों का विदेशों में व्यवसाय और अन्य कार्यों में संलग्नता बढ़ी, वे अपनी संस्कृति और विरासत को साथ में लेकर चले गए। इसमें रामलीला का बहुत विशेष स्थान है। राम और राम कथा की सर्वव्यापकता का इसी बात से सिद्ध होती है कि रामलीला न केवल भारत में अपितु एशिया महाद्वीप के अन्य देशों में, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया में भी काफी लोकप्रिय है। इसके अतिरिक्त यूएसए के कुछ स्थानों, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, अफ्रीका और कैरेबियन देशों में भी रामलीला का प्रचलन है और लोकप्रिय भी है। विदेशों में होने वाली रामलीलाओं में भारतीयता और वहां के स्थानीय नाट्य शैलियों का अद्भुत सामंजस्य देखने को मिलता है। दक्षिण अफ्रीका में रामलीला जो है वो त्रिनिदाद और टोबैगो में रामलीला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, जिसकी विभिन्न भूमिकाओं में भाग लेने वाले कलाकार भारतीय मूल के अफ्रीकी होते हैं। ये वे भारतीय हैं जिनके पूर्वज वर्षों पहले यहाँ आकर बस गए थे। वे अपने साथ अपना देश भारत और भारतीयता को लेकर आए थे, जिसे उनकी संतानों ने आज भी सहेज कर रखा है। इन रामलीलाओं में रामचरितमानस की कथा को कुछ दोहों और चौपाइयों के उसी स्टाइल में उनके स्थानीय गद्यात्मक और पद्यात्मक शैली में रामकथा को प्रस्तुत किया जाता है। इधर कुछ वर्षों से बड़ी विशेष बातें दिखाई पड़ने लगी हैं रामलीलाओं में, देश में और विदेश में भी, कि जहां पहले तुलसीदास जी की रामचरितमानस का ही प्रभाव होता था, अब वहां पर जब से रामायण बनी है, रामायण सीरियल रामानंद सागर जी का, तब से उसमें इनके साथ साथ रविंद्र जैन भी बहुत सुनाई पड़ते हैं, क्योंकि उसमें रविंद्र जैन जी का म्यूजिक था और बहुत सारे गाने थे जो अब रामलीला के विभिन्न प्रसंगों में, विशेष करके भरत मिलाप इत्यादि में उनके गीत अधिक दिखाई पड़ते हैं। अब आते हैं यूएसए में रामलीला। द आर्यन हेरिटेज फाउंडेशन की ब्रॉडवे रामलीला
अभिनय, संगीत, नृत्य और वीएफएक्स के प्रयोग से की जाने वाली अद्भुत रामलीला होती है। 3 घंटों की रामलीला भगवान श्री राम के प्रति भक्ति और समर्पण की गाथा कहती है। इसमें भाग लेने वाले कलाकार इंडो अमेरिकन होते हैं, किंतु उनकी श्रद्धा अद्भुत होती है और ऐसा मानना है कि ब्रॉडवे रामलीला में भाग लेना किसी भी कलाकार के लिए एक गौरवशाली अवसर होता है। ह्यूस्टन की रामलीला श्रीमती कुसुम शर्मा के श्री नटराज स्कूल और कलाकृति परफॉर्मिंग आर्ट्स के संयुक्त तत्वावधान में गत 14 वर्षों से वर्ष 2011 से प्रत्येक वर्ष रामलीला का आयोजन किया जाता रहा है। वे स्वयं एक कुशल नृत्यांगना हैं और कई वर्ष पूर्व तक सीता का किरदार वे स्वयं ही निभाती थी। यहाँ पर हम कुछ शेयर करना चाहेंगे अपनी कुछ पीपीटीज। आई थिंक कैन डू इट। जी, यहाँ पर हम आ गए, ये आ गए, ये उनके कुछ चित्र हैं, दिखाई पड़ रहे हैं ना? हाँ, एम आई एबल टू शेयर? नहीं नहीं आशा जी, नाउ इट्स कमिंग ना? Yeah. नाउ इट्स कमिंग? हाँ अभी आ रहा है, मगर हाँ अभी आ रहा है। अब आ ऐसा ही गए, है। अब आ गए। तो ये एक है चित्र और एक दूसरा चित्र भी है इनका। ये वाला, ये 2 चित्र जो हैं हमें ह्यूस्टन से प्राप्त हुए हैं मिसेस कुसुम शर्मा के सौजन्य से। और ये इनसे लेखिका से बात करने पर हमें पता के समय श्रीमती कुसुम शर्मा ने बताया कि उनकी संस्था रामलीलाओं में प्रयोग होने वाले कॉस्ट्यूम्स, आभूषण इत्यादि भारत से मंगवाते हैं। लगभग 4 से 5 महीने की तैयारियों के बाद ये प्रदर्शन किया जाता है। जो शो सिर्फ शायद 3 से 4 घंटे का होता है, लेकिन उसके लिए तैयारी बहुत करनी पड़ती है उन्हें। मंच पर प्रदर्शन के दौरान अधिकतर दृश्यों को स्वाभाविक और वास्तविकता दिखाने के लिए उनका प्रयास किया जाता है। विशेषकर सीता हरण के दृश्यों में पुष्पक विमान, जो उन्होंने नहीं भेजा चित्र, खैर, और लंका दहन में हनुमान जी की पूंछ में अग्नि लगाने जैसे दृश्यों को दिखाने के समय उनकी पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था बहुत सारी विभिन्न एजेंसियों की मदद से की जाती है। अब आते हैं टोरंटो कनाडा की रामलीला पर। तो वो सुश्री सौम्या मिश्रा हैं, उनकी ग्रेडियो एडिशन संस्था द्वारा प्रतिवर्ष की जाने वाली रामलीला स्वयं में अद्भुत है। उनके कलाकार लगभग 4 से 5 महीने तक चलने वाली तैयारियों के दौरान पूरी सात्विकता का ध्यान रखते हैं। ये उनकी खासियत है। सारी तैयारियां और रिहर्सल में मांसाहार, मदिरापान, धूम्रपान इत्यादि नहीं करते और इवन रिहर्सल में भी वो जूते चप्पल पहनकर नहीं जाते, जो कि वहां के ठंडे मौसम को देखते हुए थोड़ी कठिनाई होती। फिर भी वो उनके कलाकार जो है इन चुनौतियों का प्रसन्नता से सामना करते हैं। बात करते समय सौम्या जी ने बताया कि वे बाल कलाकारों के साथ काम करने में बहुत आनंदित होती हैं। ये है सीता विवाह का दृश्य, सीता के धनुष उठाने का एक चित्र उन्होंने भेजा था मुझे। और बताएं चौथे पर, ये है धनुष भंग का चित्र है टोरंटो की रामलीला का। ये रामलीला टोरंटो का एक केवट प्रसंग का चित्र है। और इनकी शैली, इनकी भी नौटंकी शैली में इनकी रामलीला होती है। नौटंकी एक शैली है, लोकल मतलब उत्तर भारत की शैली है नौटंकी शैली, उसमें उनकी होती है रामलीला। और ये इसमें बच्चे जो हैं, उनके बच्चों को बहुत साथ लेकर उनको बहुत अच्छा लगता है काम करना, क्योंकि बच्चे संस्कृत के श्लोकों का भी बहुत अच्छा पाठ करते हैं। और उनकी रामलीला में संगीत, नृत्य और वीएफएक्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कॉस्ट्यूम और आभूषण हमेशा भारत से आयात किए जाते हैं और कनाडा के विभिन्न शहरों में रामलीला का मंचन किया जाता है। अब आते हैं बाली पर। मलेशिया में बाली की काकेक डांस उलवटू लेजेंडा रामायणा, ये करके मैंने इसका एक पीपीटी यहाँ प्रस्तुत की है। ये अपनी तरह की एक अनूठी तरह की रामलीला है, क्योंकि इसमें जो है वो जो भी पात्र हैं, इनमें किसी को कोई संवाद नहीं होते। सभी पात्र बहुत सुंदर परिधानों में मंच पर आते हैं, खुले मंच पर, मुक्ताकाशी मंच होता है इनका। और नृत्य नाटिकाओं की शैली में इनमें अभिनय किया जाता है। साथ में भूमि पर बैठे हुए ढेरों कलाकार विभिन्न स्वर संगीतियों से चक चक की ध्वनि करते हैं और एक सी पोशाकें पहने हुए ये कलाकार ध्वनि करते हैं। साथ में कुछ वाद्य यंत्रों की भी ध्वनि के साथ कलाकार आते हैं, अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हैं और फिर नेपथ्य में चले जाते हैं। यहाँ तक कि इसमें राम रावण का युद्ध भी नृत्यात्मक शैली में होता है। हम कोशिश करेंगे कि हम शायद दिखा पाए, अगर हम पॉसिबल हुआ तो एक हम वीडियो जरूर दिखाना पसंद करेंगे। देखें, शायद देख सकते हैं क्या हम?
वेट, मैं कोशिश करती हूँ। आशा जी एक और भी बाकी है तो आप खत्म करिए तो। सर मुझे कितना मिनट हुआ अभी? अभी तो टाइम हो गया हुआ है। हो गया? ओके, Nearly. सो ठीक है, मैं इसको खत्म करती हूँ जल्दी से, इसको यहाँ से मैं निकल जाऊं। तो अब ये आगे चलते हैं। तो इंडोनेशिया के भी अन्य भागों में भी रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है, और इंडोनेशियाई इतिहास की ये विशेषता है क्योंकि इंडोनेशिया बहुत ज्यादा भारत से जुड़ा हुआ है। ये विदेशों में भरे बसे हुए भारतीय मूल के जो नागरिक हैं, वो दरअसल भारत की संस्कृति और सभ्यता के संवाहक की भूमिका निभाते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है हमारे भारतीयों के लिए, हमारी भारतीयता के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए। तो राम का चरित्र तो सभी जगह हमेशा ही आदरणीय रहा है, अनुकरणीय रहा है। तो उनको याद करके सब लोग पूरे विश्व में बसे भारतीय अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीलाओं को याद करते हैं, और उनको इस प्रकार से उनको अपना नमन प्रस्तुत करते हैं। अब हम आते हैं कर्टसी, यहाँ पर हमारा जिसमें हमारी मदद की जिन लोगों ने, उसमें प्रोफेसर ओपी गुप्ता ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी के, मिसेस कुसुम शर्मा ह्यूस्टन से, मिसेस सौम्या मिश्रा टोरंटो से, और मिसेस भारती श्रीवास्तव लखनऊ से, जिन्होंने मैं भारत बाली की वो उपलब्ध कराई थी। और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, नमो नमः सर्वेभ्यः। जय श्री राम। कहाँ गया मैं? स्टॉप कैसे करूं इसको? आई स्टॉप शेयरिंग। ठीक है अब। हो गया, स्टॉप हो गया। हो गया ना स्टॉप? हाँ। हाँ, हो गया, हो गया। मुझे बहुत अच्छी पीपीटी बनानी नहीं आती, बट एनीवेज। अब देवाशीष पॉल जी को बुलाएंगे ना। देवाशीष पॉल, आर यू हियर? Yes, sir, I am here. Go ahead, go ahead. Yes, sir. You have 10 minutes, that's all. Good evening, everyone. Jai Sri Ram. Thank you for this opportunity to speak here today. And I'm going to present a paper that sits at the intersection of cinema, mythology, and nationalism. The title is Myths and Colonial Struggles, a reinterpretation of S.S. Rajamouli's RRR. Joseph Campbell, very well popular quote line is that myths are public dreams and dreams are private myths. S.S. Rajamouli turns this quote or this idea in RRR, a historical dream, the dream of India's independence, into a public myth woven with threads of Ramayana. Rajamouli's film is not simply an action-packed spectacle, but it is a cinematic epic that retells the story of Indian anti-colonial resistance as a sacred war of dharma against adharma. But what makes RRR truly unique is its reimagination of characters and symbols from the Ramayana. So, not to tell the story of Rama, but very importantly, to glorify resistance itself. Let's look closely at the film's central trio. Komaram Bhim, a tribal leader, is clearly modeled on Hanuman. He is introduced wrestling a tiger. It is a clear model on Hanuman. He is introduced wrestling a tiger with his bare hands, a visual metaphor for his raw power and fearlessness. When he infiltrates the British palace under the Muslim alias Akhtar, it echoes Hanuman's own disguise when entering Lanka. Later, during his torture scene, Bhim is bloodied but unbent. It is also reminding us of Hanuman, shackled in Ravana's court, yet invincible in spirit.
The stampede scene where Bhima unleashes wild animals on the British compound, it is a symbolic Lanka Dahan. So we can say that nature itself becomes an ally against colonial tyranny. Now we will move to, or we will contrast this with Alluri Sitaraman Raju, the second lead character, whose characters mirrors, or this character mirrors that of Vibhisana. Vibhisana was Ravana's brother, but he chose to defect not out of betrayal, but a moral awakening. Likewise, Raju begins as a British officer and an apparent oppressor, but he harbors a revolutionary secret. He is arming the oppressed. The moment he picks up the bow and arrow, dressed in dhoti, no less, he is transformed into a warrior of dharma. This is more than a metaphor, it is a visual invocation. Raju literally becomes a mythic avenger. And then we will come to the next character, that is Governor Scott Buxton, a cinematic Ravana. He is resembled to Ravana, arrogant, tyrannical, and deluded by power. Buxton abducts Mali, the young tribal girl, just as Ravana abducted Sita. He believes the invincibility of the British Empire, like Ravana. But like Ravana, his pride blinds him. He underestimates the very people he oppresses. His defeat, orchestrated by Bhima and Raju together, is a mythic justice, a cosmic rebalancing. The film's musical sequence also deepens this mythology. If we take the song of Natu Natu, on the surface, it's a dance off, but is it symbolically? No. It's cultural resistance. It is very much deep in culture, or in the motive of resistance. It shows when Raju and Bhim outdance the British, or the British colleagues, they are not just performing, they are reclaiming space, rhythm, and joy from colonial elitism. Their steps are also synchronized rebellion. So what does all this do? By merging myths with history, RRR makes the freedom struggle feel inevitable, ordained, and even divine. It's not just history reenacted, but it is history sanctified. This is a powerful nationalist strategy. It evokes emotion, faith, and pride, especially when popular culture becomes the medium. At a deeper level, this fusion of Hanumana and Bhima and Raju and Vibhisana doesn't merely glorify individual heroes, rather it emphasizes the collective effort, the tribal and the elite, muscles and the mind, forest and the city, they come together. And in this union lies Rajamouli's political message. That is, true nationalism transcends caste, class, creed. It is dharmic, righteous, and above all, unified. So, to conclude, RRR doesn't just dramatizes the past, rather it mythologizes it. By drawing from Ramayana's cosmic structure of good versus evil, it recasts India's colonial resistance as a sacred work. And in doing so, Rajamouli doesn't just entertain, he educates, provokes, and ultimately reclaims the freedom struggle as a part of India's mythic imagination. And as scholars, we must ask, is this the romanticization, a glorification? Perhaps, but it is also the reclamation of a narrative of dignity and of cultural power. Thank you. Yeah, very good, Paul. That's when you took exactly less than 10 minutes even. And now I give it back to Shiv Prakash ji.